I start with the name of Allah Almighty, who is the most merciful, beneficent, and creator of the universe. Myself, Fariha Javed, and I am supervisor in online IT work. So, Assalamu alaikum to everyone from my side. So, first of all, today this is our last lecture, and we will discuss about the whole days which we have spent together in this workshop. So, first of all, I would like to introduce you people with my team. First of all, our thank you to our CEO, Mr. Huzafa Khan. He is freelancer, social media promoter, YouTuber, app developer, graphic designer, web development, programmer, instructor, network marketing, and young entrepreneur. And our second member of our team is myself, Fariha Javed, and I'm a supervisor in online IT work. I'm also a writer, poet, management, voiceover, content writing, speaker, and I'm also a host. Our third member is Aksa Bhatt. She is the management head and she's doing management. She is also doing social media marketing, promotions, finance management. Our fourth person is Mr. Mirza Faisal. She's the management head and she is also doing data management, debate, account management, and she's also a best friend speaker. Our fifth member is Sadia Samreen. She is a groups discipline head, and she is doing groups management, hosting, social account management, and content management. And our last member is Hira Khalid. She is also a content head, and she's a content writer, content management, hosting, speaker, and she's also doing groups management. And now I'm going to introduce you with my instructor, Ms. Shujia Hassan. First of all, I would like to thank you so much. I would like you to say, ma'am, thank you so much for your presence and for telling us so much things, a lot of things to learn, and we all have learned a lot of things from you. Thank you for this thing. And from today is our last discussion, so kindly don't leave the meeting. We will also provide certificates at the end of this meeting in within 2 or 3 days maximum. So, Ms. Shujia Hassan, over to you. So, please start the discussion. Assalamu alaikum everybody. Hope all of you are doing well and great. So I was eagerly waiting for this day. यहाँ से हमने जब स्टार्ट किया तब एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं आप लोगों को जो है इंस्ट्रक्ट करने वाली हूँ. एक अच्छी वाली फीलिंग थी, ठीक है. और हमने आई होप सो कि हमने अच्छा इसको कैरी किया, ठीक है. हमने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा, देखा, पढ़ा, अच्छा हमने डिस्कस भी किया, काफ़ी हमने इसके एस्पेक्ट्स को भी फॉलो किया. सो आज हम इस सबको समराइज करना चाहते हैं और आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्योंकि आप लोग ने इसको जो परसीव किया, अच्छा लोग भाग गए हैं यहाँ से, लीव कर गए पहले 11 थे पार्टिसिपेंट्स. खैर आप लोग हैं, आप लोग रहिएगा, सुनिएगा और इसमें पार्टिसिपेशन अपनी शो कीजिएगा. प्लस आप लोगों ने मुझे बताना है इसके हवाले से कि आप लोगों ने इससे कितना गेन किया और आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. अगर आज भी आप मुझसे कोई क्वेश्चनिंग करना चाहेंगे तो आई एम हियर टू आंसर यू. मैं आपको आंसर करूंगी. किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको आंसर करने के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है. या अगर कोई ऐसी बात आपने पूछनी हो जो प्रीवियस लेक्चर्स में आप नहीं पूछ सके किसी रीजन की वजह से, या किसी ने अभी फ्रेशली उन लेक्चर्स को देखा है, सुना है, तो अगर आपके मन में अगर कोई और क्वेश्चन आ रहा है कि मैम अगर इस तरह से हम लोग करना चाहें या इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं. ओके सो अगर किसी का कोई इस तरह से क्यूरी है, क्वेश्चन है या कोई आइडिया है, या अगर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, लाइक उस दिन जब मैंने क्लास में डिस्कशन करवाई प्रेजेंटेशन के हवाले से, तो उसमें कुछ ऐसे माइनर सी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आ रही थी स्टूडेंट्स के दरमियान में. तो मैं चाहती हूँ कि वो चीजें जो है ना वो ना हो, लाइक आपका कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर रहे हर चीज के हवाले से. तो अगर किसी भी चीज में आपकी कोई कॉन्सेप्ट में मिस्टेक आ रही है, कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप काइंडली कर लें.
अस्सलाम वालेकुम अच्छा, मैम। वालेकुम अस्सलाम। हम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैम जिस तरह से आपने हमें गाइड किया हमें सारी अच्छी समझ आई है। और कुछ पहले भी आता था, यानी कि हमें ग्रेजुएशन की है तो कुछ पहले भी पता था ये, लेकिन जैसे आपने गाइड किया और मजीद उसमें मिल गया। और जो हमारे एक्सपीरियंस जो हम स्टडी के जैसे कंसेप्ट थे वो हमारे अच्छी तरह क्लियर हो गए। और कुछ जी रिवाइज जी, भी बहुत शुक्रिया। बहुत आप अच्छा तो आपने मैम क्लास में गाइड। आते नहीं थे। मैम मैं आता रहा हूँ, मैं पहले पहले बोलता नहीं था, बोला था बात है, लेकिन आता रहा हूँ। एक उस कल दिन नहीं एक आया। दिन मैंने आपका नेम कॉल किया था, आप बुलवाने के लिए। उस दिन माइक अनम्यूट हो गया था, आपने कहा था मैम मैं नेक्स्ट डे बोलूंगा। उसके बाद वो से मैं आप आए नहीं। मैंने आपको बताया था मैम, वो मैं काम करता हूँ ना, तो फिर उसके बाद वो हमारे ये एक तो शॉप के काम बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर फ्रीलांसिंग की स्टार्ट की है तो वो उसके भी बड़े ज़्यादा काम थे। मैं मिल टाइम नहीं मिला उस दिन मुझे। जी ये जी, मैं रीज़न समझ जरा। सकती फिर ये हमारा शोरूम है, हमारा ये यहाँ पे फर्नीचर का, तो यहाँ पे हमें ख्याल देना होता है। यहाँ पे कस्टमर वगैरह आते हैं तो उनको भी थोड़ा सा इधर भी ख्याल देना होता है, इसलिए नहीं मैं आ सका। वैसे मैम समझ बहुत अच्छी है, और रिकॉर्डिंग अगर नहीं भी कोई लेक्चर अटेंड करते थे तो रिकॉर्डिंग आपसे मिल जाते, वहाँ से बहुत अच्छी यानी कि समझ आती थी। वो भी हम जी यानी जी। कि साथ साथ ही करते रहे हम। Okay, if you wanna say something in English, you just unmuted it. Okay, fine. Fatima Babar, would you mind to say something? Or if you have some queries or questions regarding any kind of step, concept, or uh, you have a query or question, uh, and you want to get some information about that, you can just simply ask me. ओके, आप लोग मुझे क्या ये बता सकते हैं, आप में से कोई अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता है या किसी के कोई आइडियल है? एनीवन? या आप खुद ही अपने लिए मोटिवेशन है? नो मैम, मैं मोटिवेशनल वीडियोस अक्सर सुनता रहता हूँ। किसकी ज्यादा सुनते हैं, कोई स्पेसिफाई आप करेंगे? कोई स्पेसिफिक स्पीकर्स लाइक होते हैं ना। मैम कासिम अली शाह एंड और भी। आप बस मोटिवेशन लेते हैं या उस पर अमल भी करते हैं? लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि बस सुनते हैं, सुनते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, अपना फारिग टाइम गुजार लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो आप नो कौन से वाले हैं? मैम बस कोशिश अमल करने की कोशिश तो खैर करता ही हूँ, बस हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? मैम सुनते रहते हैं, लेकिन वो जो होता है ना, खुद से अप्लाई करने के लिए वो टाइम नहीं मिलता। असल बात ये है मैम, ओह, क्योंकि आई जिंदगी सी। मसरूफ ही बहुत है आजकल के दौर में, तो बिल्कुल ही बंदे को टाइम नहीं मिलता। जो करते हैं काम, जो फ्री हैं तो वो फ्री हैं, वो बिल्कुल भी फ्री हैं। और जो करते हैं उनके लिए फिर टाइम ही नहीं होता। आपको एक सिंपल सी मैं ट्रिक बताऊं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा होना पड़ता है कि जब आपने किसी चीज में खुद को कामयाब करवाना हो ना, लाइक सक्सेस की तरफ जाना हो, और आपको लगे कि आपके पास टाइम नहीं है उस चीज के हवाले से, या आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो आप क्या करें? आप कमिटमेंट कर लें उस काम के रिगार्डिंग। तो आपका टाइम आप खुद निकालेंगे। अगर आप कमिटेड इंसान है ना, अगर आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी करने वाले इंसान है, तो आप टाइम खुद निकालेंगे। आप उसके हवाले से कंसर्न्ड रहेंगे कि मैंने ये कमिटमेंट की है, मैंने अपनी जुबान दी है। अपनी जुबान की लाज रखना सीख लें, बस फिर आपके सारे काम होते जाएंगे। टाइम फिर कोई मसला ही नहीं रहेगा आपके लिए। सही अस्सलाम बात वालेकुम है मैम। मैम। बिल्कुल। जी जी, किसी और ने कुछ बोलना था? मिर्जा, आपका माइक अनम्यूट हुआ था। जी मैम, मैं बोल रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मोटिवेशन पे डिस्कस हो रही थी, तो मोटिवेशन लेनी किस चीज़ के लिए?
मैंने पूछा था कि लाइक लोगों की कुछ हॉबीज होती हैं, शौक होते हैं ना, तो आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस सुनते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं स्पेसिफिकली या रैंडमली? अच्छा, वो असल में ना वो बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि मतलब मोटिवेशन हम लेते हैं, लेक्चर्स लेते हैं कि किस चीज़ के लिए लेते हैं, किस चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए। सबसे बड़ी मोटिवेशन तो हमारे पास हमारे पेरेंट्स होने चाहिए, कि जो पेरेंट्स हैं हम उनके लिए, वो हमारे लिए मोटिवेशन है, हम उनके लिए पढ़ें, उनके लिए एग्जैक्टली। ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्यूचर अच्छा सिक्योर करें, ताकि उनकी हम्म, जो नेक्स्ट जो लाइफ उनकी आनी है वो सुकून से उनकी वो गुजार सकें लाइफ अपनी। ये तो रीजन होता है ना, बेसिकली ये रीजन होते हैं हमारे स्ट्रगल के लिए। और किसी भी मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को ऑन करने के लिए आपके पास जो सबसे पहले आती है, एक थर्स्ट आती है, थर्स्ट टू डू समथिंग। और वो थर्स्ट कब आती है? जब आपके पास कोई रीजन होती है, जब आपकी कोई जरूरत होती है। अब अगर आप देख लें, अगर आपकी मोटिवेशन आपके पेरेंट्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अगर उनको खुश करना चाहते हैं तो ये आपकी जरूरत है। अगर आप इसको अपनी जरूरत बना लेंगे, उनको खुश करना, तो आप खुद को मोटिवेट करेंगे। जहां पे आप कहीं पे माठे पड़ गए, ढीले पड़ गए, आप खुद को दोबारा से जो है रिचार्ज करेंगे कि नहीं। जब आप कहीं पे डाउन फील करें तो उसमें आप क्या करें? आप देखें कि मैंने स्टार्ट किस लिए किया था। दिस इज योर मोटिवेशन। जी एंड मैम, आपका पॉइंट बिल्कुल आप। बहुत अच्छा है। जी जी। मैम ये उनके अगर वालदैन के लिए कुछ करना भी है तो उनके लिए भी आपको पहले मोटिवेशन से लेनी जरूरी है। वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, अपने बड़ों से ले सकते हैं, जो आसपास लोग हैं उनको देख। और सबसे बड़ी बात जो बंदे के हालात हैं वो सबसे बड़ी मोटिवेशन। मोटिवेशन लेके फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्या करना होता है? फिर उस पर अमल मोटिवेशन करना। होती क्या है? मोटिवेशन होती क्या है, ये पता है? कोई मोटिवेशन मतलब। वो चीज़ हम्म। आप बता दें मैम। जी जी, आप बताएं, आप लोग पहले बताएं, मैं तो एंड पे बताऊंगी, मैं तो बताती रहती हूँ। मोटिवेशन वो चीज़ है मैम जिसको बंदा सुन के या किसी की बात सुन के बंदा जो अपने पर अप्लाई करके वही काम, यानी कि अपने आप को खुद को कामयाब बनाने के लिए काम करना चाहिए, यानी कि फजूल काम छोड़ दे और एक सही ट्रैक पे आ जाए। मोटिवेशन होती है एक्चुअली कि इंस्पायर करना किसी को, या किसी को मीन्स कि किसी के अंदर किसी चीज को वो बिल्ड अप करना, कि जिसकी वजह से वो मतलब उसके अंदर किसी चीज का जज्बा पैदा हो या किसी चीज को करने का वो हो। जैसे अब अल्लामा इकबाल थे तो उनकी शायरी ने मोटिवेट किया था ना मुसलमानों को कि एग्जैक्टली। वो अलहदा वतन के लिए जो है वो करें, अप्लाई करें। और फिर कायदे आजम की कोशिशों ने, तो इस चीज को कहते हैं मोटिवेशन। दैट्स अ गुड पॉइंट, द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एनीवन एल्स? बिल्कुल एक जनरल डेफिनेशन, कि जनरली अगर हम लोग सिंपली मोटिवेशन की कोई एग्जांपल लेना चाहिए, या अगर कोई सिंपली पूछे कि व्हाट इज मोटिवेशन, अगर कोई डेफिनेशन इसकी पूछ रहा है, तो बताएं कोई कि क्या होगा? कोई आइडिया आपका, कोई आइडिया अपना ही, मैम या आपकी नजर में? मोटिवेशन को, जी जी, जी जी। मोटिवेशन को हम इस तरह भी ले सकते हैं, किसी चीज के लिए खुद को गेयर अप करने के लिए। मीन्स कि अगर एग्जैक्टली, कुछ, द जी मेन किसी, पॉइंट, जी द मेन पॉइंट, यू गॉट द मेन पॉइंट। वेरी गुड। और कोई अंदर इजाफा करना चाहे, अगर कोई? मैम ये सारे हुज़ैफा खान कुछ नहीं बोलते, इनसे भी कुछ मोटिवेशन हमें ले दें। आज सर ने सब कुछ बोलना है। तो आप आज उन्हें भी मौका मिलना चाहिए बोलने का। सर हुजैफा खान आपको सारा कुछ बताएंगे आज। सर बच्चे बुला रहे हैं आपको। सर हुजैफा बिजी होते हैं तो वो बहुत कम टाइम देते हैं, इसलिए एट द लास्ट पे वो आएंगे और आके हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। हाँ वो आएंगे, वही कह रही हूँ ना मैं, उन्होंने बोलना है आज सारा। मैंने तो आपसे डिस्कस करना था कि अच्छा, पहले अब जो हमने इतना कुछ डिस्कस किया है, ये भी इसी का ही एक पार्ट है। तो मैंने कहा चलो, अगर ये कुछ स्किप ना हो जाए। चलो, मोटिवेशन एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे कि मिर्जा फैसल ने बताया कि मोटिवेशन होता है अर्ज टू डू समथिंग, खुद को गियर अप करना, कुछ करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक करने के लिए। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आपके कोई एक डेली रूटीन है, ठीक है, आप बिस्तर में हैं,
सही है, आप बिस्तर में हैं और आप उठ नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं कि मैं कैसे उठूं, दिन स्टार्ट करूं अपना, मैंने ये काम करना है वो काम करना है। आप बिस्तर में लेटे लेटे अगर सोच रहे हैं कि मैंने उठकर ये काम करना है वो काम करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है, आज अगर मेरी कोई मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन है, कि मेरा कोई काम है मैंने उसको करना है, आप लेटे लेटे कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आपको खुद को उठाना पड़ेगा। लेकिन आजकल जैसे सर्दियां हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते होते सुबह सुबह उठकर, कि मतलब सर्दी लग रही होती है, ठंड लग रही होती है, सबसे ज्यादा जो है सर्दियों में सुबह की नमाज वगैरह छूटती है। जो लोग लाइक पक्के नमाजी होते हैं उनकी भी समटाइम्स छूट जाती होती है क्योंकि बिस्तर काफी गर्म होता है। सो यू कैन से कि फर्स्ट स्टेप लेना, जो फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा वो बहुत हार्श होता है, ठीक है, काफी दफा बहुत ही ज्यादा हार्श होता है कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वो स्टेप लेने के लिए। फर्स्ट स्टेप लेना, द फर्स्ट स्टेप इज योर मोटिवेशन, योर फर्स्ट स्टेप इज योर मोटिवेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाता है, आपकी रीजंस आ जाती हैं, आपकी जो है स्टिमुलस आ जाता है, जिस चीज आपको स्टिमुलेट कर रही है कुछ करने के लिए, आपकी मजबूरियां आ जाती हैं, ये सब कुछ आपके फर्स्ट स्टेप में आता है। और फिर आपका आता है स्टेप। कैसे, लाइक अगर आप बिस्तर में हैं, बिस्तर गर्म है, आपका उठना बहुत जरूरी है, आपका वो पहला उठना, बिस्तर से निकलना, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज गोना बी योर मोटिवेशन। जब ये चीज आपकी मोटिवेशन बनेगी, ऑफ कोर्स जब आप एक दफा निकल चुके हैं बिस्तर में, ठंड में आ गए हैं, तो फिर आप कहेंगे चलो अब मैं निकल तो क्या हूँ बिस्तर से, अब मैं उठ के मुंह भी धो लूं, फ्रेश भी हो जाऊं। चलो स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो यू आर रेडी फॉर योर होल डे टास्क। ऐसे ही होता है ना। सो मोटिवेशन कैन बी ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग अराउंड यू। अब हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स में, अगर आप लाइफ में कुछ भी आपको फेलियर फेस करना पड़ गया, ठीक है, लाइक आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी, तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, या आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें कुछ एरर आ जाता है, लोगों को पसंद नहीं आती, या उसका सीजन गुजर जाता है और आपकी जो है प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा बन चुकी हैं, ठीक है, और आप जो है अब वो सेल नहीं कर पा रहे, या बहुत कम सेलिंग पे जा रही हैं, या आपके जो है रेट्स हैं काफी डाउन जा रहे हैं, तो उसमें जो है आपकी कंपनी लॉस में है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कोर्स अफसोस होता है, आप परेशान भी होंगे, टेंशन में होंगे, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप टेंशन लेंगे, परेशान होंगे, इससे जो है सीन्स सही नहीं होंगे, ठीक है, इससे और ज्यादा खराब हो, लाइक आपको फिर जो थोड़ी बहुत आपकी सेल हो रही है उसको भी हैंडल करना नहीं आएगा, आपके जो स्टाफ है वो परेशान होगा, उनको पे नहीं मिल रही होगी, तो बहुत सारी जो चीजें आ जाती हैं दरम्यान में। अब क्या करें, आप अपना एटीट्यूड नॉर्मल रखें। दूसरी साइड पर अगर हम लोग देखें, पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आप देखें, आप परेशान ना हो, आप इसको जो है थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर लें, सेविंग्स ऑफ कोर्स होती हैं हर किसी के पास, तो आप इसको थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर लें। आप जो सीजनल चीज है, ये जो रिक्वायर्ड है, ये जो डिजायर्ड है बाय योर ऑडियंस, या जो आपके लोगों की तरफ से डिजायर्ड है, रिक्वायर्ड है, आप उसको दोबारा से क्रिएट करो, ठीक है, प्रोड्यूस करो, देन वो लोगों को पसंद आएगी, ठीक है। और पता है एंटरप्रेन्योरशिप में यही होता है, आपका जो अगर बिजनेस स्किल्स की तरफ अगर आप मूव करें तो ये बहुत ज्यादा, अगर आप बिजनेस स्किल्स की तरफ से अच्छा, तो अगर आप बिजनेस स्किल्स की तरफ मूव करें तो आपको काफी चीजें मिलती हैं यहाँ से। यहाँ पे अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप है या कोई बीबीए से बिलोंग करता है, ऐसी बात है मैम, ये हमारे बिजनेस में काफी अप एंड डाउन देखने पड़ते हैं, हम बिजनेस करते हैं मैम। जी जी, शोरूम है, शोरूम में फर्नीचर का काफी तो अगर मतलब कभी डाउन वगैरह हो जाए तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं? इस सीजन में मैम काफी डाउन तो सेविंग होती है, फिर वो चल जाता है काम। इस सीजन में तो हमारा बहुत ही काम खराब हुआ है इतना, फिर वो हमारा शोरूम था वो छोटा था पहले, फिर हमने ये नहीं सोचा कि चलो इसे बंद ही कर दें, नहीं कुछ मिल रहा, तो हमने सोचा नहीं इसको बंद करने से बजाय इसको फिर हमने यही बढ़ाया, तो अल्लाह का शुक्र है काम बेहतर हो गया।
यानी कि लोगों के म्यार की चीज़ अगर आपके पास नहीं होगी तो लोग भी नहीं आएंगे। अगर उनके म्यार की चीज़ आपको मिलेगी, उनको लोगों को मिलेगी, फिर वो आएंगे। और उसके बरक्स आपके लाइक कभी कुछ डाउन अगर जाए तो उसमें परेशान होने से कुछ सही होता है? कभी भी कुछ नहीं सही हुआ, हमेशा चीज़ें खराब ही होती है। वही तो मैं समझाना चाह रही हूँ कि आपने खुद को हमेशा रिलैक्स रखना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बीइंग ऑनेस्ट बताऊं। बीइंग ऑनेस्ट, कभी कभी लाइक लेक्चर देते हुए भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है, लाइक नेट बंद हो जाता है। मेरा तो अक्सर हो जाता होता है, सारा दिन बिल्कुल सही चल रहा होता है और जहाँ जैसे मीटिंग स्टार्ट होती है कुछ ना कुछ इसको हो जाना चाहता है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं कैसा इंप्रेशन जा रहा होगा, बच्चे क्या सोच रहे होंगे। तो लेकिन अगर उसमें मैं खराब कर लूं, अपनी सारी स्पीच खराब कर लूं, अपनी वॉइस को मैं क्रैक कर लूं यहाँ पर और छोड़ दूं, तो फिर हो गया सेशन, फिर होगी वर्कशॉप। और कभी कभी मैं बोलते हुए लाइक इतनी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी घर में, आप लोगों को पता है क्या हो रहा होता है। तो डिस्ट्रैक्शन हो रही है, कभी मम्मा आके मुझे कोई काम बोल रही होती है कि इस तरह से ये कर लो वो कर लो, या गेस्ट आ गए हैं तो जरा जल्दी वाइंड अप करना, और मैं फिर भी ढीठ बन के लगी रहती हूँ। अब कल मेरे घर में सेलिब्रेशन चल रही थी और मैं जो है वहां पे काम वगैरह करवा रही थी। वो छोड़ के शाम के टाइम में फिर यहाँ पे आई बैठी थी। तो मतलब इस तरह से, और इतने गेस्ट वगैरह थे, आज सुबह सुबह गए हैं। तो फिर भी मैं जो मतलब ऐसे आ रही थी तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह कभी कभी हो जाती है और मेरे जो है माइंड से जो स्किप हो जाता है। तो फिर मैं उसको ला रही होती हूँ कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर थी और इसको मैंने इस तरह से बता रही थी, तो अब ऐसे ही बताओ। और ये वो एग्जाम्पल्स देते रहते कभी मेरे माइंड से। तो इसमें अगर मैं उसको पैनिक करूं और मैं बंद कर दूं सब कुछ, तो फिर क्या होगा, मेरा भी हर्ज होगा, आपका भी हर्ज होगा। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आए थे, टाइम निकाला था, वो सारी चीज खराब हो जाएगी। तो अगर मैं खुद को रिलैक्स करूँ, दोबारा से खुद को मैं स्टेबल करूँ, उस चीज पर लेकर आऊं, तो चीजें जो है बेटर वे में हम लोग रन कर सकते हैं। अच्छा, आज एक और चीज हम लोग देखते हैं। क्या आप में से कोई अपना एक सबसे ज्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस और सबसे ज्यादा जो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक रहा है लाइफ में, वो आप शेयर कर सकते हैं? आई वांना नो। एनीवन? मैम, जो अभी तक जो एक्सपीरियंस मिले ना जिंदगी से ये एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई भी बंदा आपके साथ जब कोई बात करता है अच्छे तरीके से बोल रहा है ना, तो उसका मतलब है कि उसके पीछे कोई उसका मतलब है। उसने ऐसे नहीं आपके साथ कोई भी बात करनी, या बिला वजह आपने उसने आपको नहीं बुलाना आजकल के दौर में। नहीं नहीं, मतलब अभी तक लाइफ में, अभी तक कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि मतलब ये काफी बुरा सिनेरियो क्रिएट हो गया था, लाइक मेरा काम जो था वो उल्टा पड़ गया, या मैंने अगर कुछ एक्सपीरियंस किया फर्स्ट टाइम लाइफ में, कुछ ट्राई किया तो वो अच्छा नहीं रहा, या अपनी मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं रहा, या अगर कोई मैम वो मतलब अगर किसी के माइंड में ये भी होना कि मैं तो सोच के आई थी या आया था कि ये वर्कशॉप ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन मुझे अपने निशान नहीं लगी। तो मतलब इस तरह से भी अगर लाइक बहुत से लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगर उनको उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं मिलता कुछ, तो वो कहते हैं कि हमारे वर्स्ट एक्सपीरियंस था या बैड एक्सपीरियंस था। तो उस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि कोई भी आपका ऐसा अगर रहा हो तो, मैम मैंने किसी का भी। बीएस किया केमिस्ट्री में। तो पहले पहले जब स्टार्ट किया तब ये सोच थी मेरी कि केमिस्ट्री कर लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, बहुत ही यानी कि घर वाले भी सुखी हो जाएंगे, मैं खुद भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा, यानी कि ऐसे फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। लेकिन जब बीएस कर लिया तो बीएस करने के बाद केमिस्ट्री जब कर लिया केमिस्ट्री में, तो अब कुछ भी नहीं है। और मैं एक दफ़ा जहाँ पे गया इंटरव्यू के लिए, मैंने तो पहले वैसे तो मैंने किसी जगह पर अप्लाई किया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास अपना ही ये कारोबार था, ये बिजनेस था। मैंने सोचा यहाँ पे एक दो दफ़ा अप्लाई किया, लेकिन जब काम नहीं बना तो मैंने कहा चलो यहाँ पे दफ़ा करो, अपना कारोबार जो है इसी को सेटल कर देते हैं। तो मैंने इधर ही फोकस कर लिया। तो एक दफ़ा मैंने एक दोस्त को कहा कि यार किसी टीचिंग के लिए मुझे ना किसी स्कूल में भेज दे। उसने आगे किसी दोस्त को कहा, और उसने मुझे मैसेज किया रात को 10 बजे कि यार सरफराज आपका ना सुबह है इंटरव्यू है, इंटरव्यू नहीं डेमो है आपका। तो आपने मैंने केमिस्ट्री की है, लेकिन वो स्कूल था, स्कूल में आपको पता है वो सारे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाने पड़ते हैं। जी जी।
तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उर्दू का कोई भी है ना, कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट करके ले आना, कोई तैयार करके ले आना, तो आपको वो डेमो हो जाएगा रात को 12 बजे, कहता सुबह 11 बजे आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा। और सुबह जब हुई मैम उसकी मुझे कॉल आई 8 बजे कि सरफराज आप अभी आ जाओ, अभी नहीं बल्कि 11 बजे 10 बजे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा। तो मैं प्रिपेयर हो रहा था, यानी कि अभी अपनी तैयारी कर रहा था ड्रेसिंग वगैरह की, तो दोबारा फिर उसकी कॉल, अभी आ जाओ। मैं चला गया। अभी मैंने प्रिपरेशन तो क्या करनी, कुछ भी नहीं की। आगे गया हूँ मैं, और मुझे आगे कहता कि उर्दू के लिए उसने कहा कि डेमो आपने लेना है, और आगे जाकर उन्होंने SST शुरू करवा ली। तो मैं ओ SST शुरू करवा ली, और मेरा वहाँ पे ऐसा दिमाग खराब हो। फिर ऊपर से मुझे वहाँ पे ना उनके पास स्टूडेंट बहुत कम थे, और एक ही रो में 4 स्टूडेंट बैठे थे बस, और मैं डेमो दे रहा था, यानी कि जैसा मुझे आता था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सही दे दिया। और टीचर मुझसे आगे कहता कि तुम्हारी आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि ना साथ मोहल्ले वालों को सुनाई दे, इतनी आपकी ऊंची आवाज वाओ। होनी चाहिए। मैं कहा ठीक है सर। मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं, फिर ये ना मोहल्ले वालों को जगाने के लिए आया करूंगा। फिर ये आप मैं के साथ, ये आप रखो अपने पास ही अपनी जॉब, मैंने नहीं करनी। मैं वहाँ पे अच्छा, यही बात, ये जेन्युइनली एक बुरा एक्सपीरियंस। वो मेरी जिंदगी टीचिंग के बारे से मैंने ये पहले एक्सपीरियंस किया, तो उसके बाद मेरा दिल नहीं किया कि यार कि मैं किसी जगह पे और भी अप्लाई कर दूँ, ये किया था। और ये था अब चले, आप जहाँ भी हैं अच्छा ही कर रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। केमिस्ट्री से वाले से ये था कि केमिस्ट्री कर लिया है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बाद में बड़ा कुछ मिलेगा। लेकिन जब देखा कुछ भी स्कोप नहीं। अब ये टीचिंग की एजुकेटर में जॉब जो आती है, एजुकेशन की जॉब आई हैं, उनमें टीचर ये केमिस्ट्री की कोई पोस्ट नहीं है, केमिस्ट्री की भी नहीं है और फिजिक्स की भी नहीं है। तो फिर भी वही मायूसी। मायूस होना, जस्ट कीप ट्राइंग। अगर एक जगह नहीं हो रहा, आप एक 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 वक्त में आप एक जगह पे मत ट्राई करें ना, आप एक से ज्यादा जगहों पे करें, जहां पे भी आ जाए जो आपको अपने हिसाब से ठीक लगे, या आपकी जो वो चीजें मान लें। आपकी आपकी अपनी भी तो कुछ शराइत होती है ना, आपके सर्कमस्टांसेस तो पूरा उतरे, तो आप उसको ज्वाइन कर लें, सिंपल। तो सिंपल मैम और फिर ये कुछ बच्चे, अच्छा एक और यहाँ पे मैं चीज ऐड करना चाहती हूँ, सॉरी आपको मैं बात काट रही हूँ। बच्चे जो एडमिशन लेते हैं ना डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, स्पेशली एफएससी के बाद, तो इसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप कभी भी किसी एक चीज पर रिलाई मत किया करें। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल एमडी कैट करना है या ई कैट करना है, वो कहते हैं हमने ये करना है, सबको पता है इसका मेरिट हमेशा हाई होता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इवन जो टॉपर्स होते हैं, आप लोग हमेशा अपना जो है एक बैकअप प्लान रखा करो पीछे। कैसे रखा करें, कि अगर कोई है ना टॉपर, वो समझ रहा है कि मेरे अगर 200 में से 170 मार्क्स आ जाएंगे, इतने मेरे एफएससी में मार्क्स हैं, तो मेरा हो जाएगा एडमिशन। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। एटलीस्ट आप 4 to 5 यूनिवर्सिटीज में अपनी, चाहे मेडिकल के हवाले से आप अप्लाई करो, या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर लो, प्राइवेट में कर लो। फिर जहां पे भी, फिर जब बारी बारी जब मेरिट लिस्ट लगती है ना, आफ्टर एमडी कैट ही लगती है मेरिट लिस्ट मोस्टली, तो आपको जो अच्छा लगे आप वहां पर चले जाओ, एडमिशन अपना सिक्योर कर लिया करो। क्योंकि ये आपके लिए, आप लोग तो अभी माशाल्लाह से सारे बैचलर्स करके बैठे हो, कुछ लोग मास्टर्स भी कर चुके हैं। तो ये उनके लिए है। आप लोग अगर आगे किसी को कैरियर काउंसलिंग में हेल्प करना चाहते हो, तो आप उनको ये मशवरा लाजमी दीजिएगा कि वो अपने जो है करें इस तरह से ना, इस चीज को यूटिलाइज करें। क्योंकि जब आप सिर्फ एक जगह पे कर रहे होते हो, तो समटाइम्स वहां पर नहीं होता, फिर आपका टाइम वेस्ट होने वाली बात हो जाती है। मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम।
अच्छा कोई बोल ही नहीं रहा, मैंने कहा शायद कोई हूँ हाँ करेंगे, मुझे लगा शायद मेरा ही माइक बंद हो गया है। नहीं नहीं मैम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा फिर तो सही है। मुझे लगा शायद अच्छा आपने खुद म्यूट किया है या आप खुद नहीं बोल रही। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को। अच्छा आज सारे बोले, मतलब आज तो नए नए लोग भी हैं। आयशा, आशिक, आप बहुत कम आती हैं। आप क्यों कम आती हैं? अपना माइक जरा अनम्यूट कीजिएगा। मुझे आज सबसे बात करनी है। अच्छा जमीला बीबी, आप भी कभी भी नहीं बोलती, आप बस होती हैं लेकिन आप बोलते नहीं हो। आप माइक भी अपना अनम्यूट नहीं करते। सायरा असलम, आप भी अपना माइक नहीं अनम्यूट करते। और सैयद अमार शाह, आप बहुत कम करते हैं। मिर्जा फैसल जब भी आते हैं क्वेश्चनिंग करते हैं। मोहम्मद अमीन, आप भी नहीं बोलते दरमियान में। इकरा अच्छा पार्टिसिपेशन शो करती हैं। फातिमा बाबर, आप भी, आपने शायद सिर्फ एक दफा ओपन किया था, वो भी शायद इंट्रोडक्शन के टाइम पर, आई गेस। आज सरफराज इज ऑन फायर। सरफराज हर बात का जवाब दे रहे हैं। अच्छा आई वांट टू नो योर स्पीकिंग स्किल्स। अच्छा वैसे आप लोग सच में, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सच में आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। तो फिर यस कोई मैम बोल आती क्यों है। नहीं रहा? कोई बोल क्यों नहीं रहा? मैम कोई आई क्वेश्चन वॉन्ट होगा यू तो गाइस बोलेंगे। टू स्पीक। जरूरी तो नहीं है ना। आई वॉन्ट यू गाइस टू स्पीक। अच्छा मोहम्मद अमीन, आप बोलें जरा आज। इसके बाद फिर जमीला ने बोलना है, फिर सायरा ने बोलना है। मैम दरअसल कुछ लोग इसलिए भी नहीं बोल रहे कहीं आप कोई क्वेश्चन ना पूछ लें। असल बात ये भी है नहीं मैम। चले मैं नहीं पूछती क्वेश्चन, वैसे ही मुझसे बात कर ले। मैम उन लोगों को नजर लग जाती है, वो क्यों बोलेंगे? जी सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैंने कहा उनको नजर लग जाती होगी इसीलिए नहीं बोल रही। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा वैसे फातिमा आप नहीं बोलती, जमीला ने अभी तक अपना माइक अनम्यूट नहीं किया। मैंने आपकी आवाज भी नहीं सुनी जमीला, एक दफा भी नहीं सुनी। सायरा की भी नहीं सुनी मैंने। फातिमा की एक दफा सुनी थी। फातिमा बहुत टाइम हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं सायरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्लाह पाक का शुक्र है। आप बोलती नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं आती हैं। मैंने जब से ये वर्क स्टार्ट हुई है ना, मैंने सिर्फ 2-3 दिन क्लासेस ली हैं। 2-3 बार बस ज्वाइन हुआ, बस ज्वाइन ही नहीं होता था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ओह आई सी। जी रिकॉर्डिंग्स है ना, तो फिर उधर से मैं ले ली। सो कैन यू प्लीज टेल मी कि आपने कितना गेट किया? अच्छा मैम रहा आपके लिए? मैंने एक लेक्चर फुल किया था 10, तो उसमें सीवी वाला था, बहुत अच्छा बता रही थी माशाल्लाह, समझ भी आ रही थी। चलें शुक्र है समझ आ रही थी। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। चले जमीला अब आप बोलें। आई वांना हियर यू, आई वांना लिसन यू। मैं देखना चाहती हूँ आप कैसे बोलती हैं, आपकी कैसी आवाज है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, करम है, शुक्र है आज आप बोल दी हैं। वो एक्चुअली मैं मीटिंग नहीं लेती थी, हम इसी वक्त ही वापस आते हैं यूनिवर्सिटी से, तो फिर नमाज पढ़नी होती है तो ऐसे ही बस ज्वाइन करके छोड़ देती थी। अल्लाह अल्लाह, धोखा, हमारे साथ धोखा। नहीं, वो फिर मैं रिकॉर्डिंग सुन लेती थी यूट्यूब पे। ओ फिर तो सही है। आपको समझ आती थी लेक्चर्स की?
जी जी बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हैं। आपको जो तो जो आती मैं थी ना समझ। जी जी बहुत अच्छी आती थी। वो ना आप अपना माइक नहीं ना अनम्यूट करते थे, आप तो मीटिंग लगा के छोड़ देते थे, तो मुझे लगता था शायद आप नाराज हैं। नहीं नहीं, मीटिंग मैं नहीं सुनती थी, मेरी रूममेट सुनती है। अच्छा, वो सुनती हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। जी जी 2-3 लोग ही सुन रहे होते हैं। दैट्स रियली गुड। और आप अगर कुछ कहना चाहें। मैं कुछ कहना चाहती थी, मैंने लेक्चर सुने यार मैं बोल यार बोले क्या बोल कुछ नहीं बोलना है। नहीं, उसको हमारी रूममेट थैंक्स करिए आपका। मिस्टर मैम मेला आप अपना माइक ऑफ करें। मैम आप इनका माइक ऑफ ही रहने से तो अच्छा है। मिस्टर मेला अपना माइक ऑफ करें प्लीज आप। अच्छा, आज एक न्यू नेम मुझे नजर आ रहा है, हसीब अली। हसीब अली, आप फर्स्ट टाइम शायद आपने ज्वाइन किया है। मैम अब क्या मैंने कहा एक नया बच्चा आया है, जान पहचान कर लूं, बाकी सबको तो फिर थोड़ा सा है। मिस हिरा भी आई हैं आज। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आई वॉज कॉलिंग यू ऑल, मिस हिरा और हसीब अली, और मैंने किसको कॉल किया है, हाँ, और मिस अक्सा। मैडम जी जी। अब अगर कोई बोल रहा तो फिर सीईओ कर ले। जी जी। मैडम ये अगेंस्ट भी वर्कशॉप स्टार्ट होती रहेंगी या फिर अब खत्म हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी कोई आज दोबारा? ये स्पोकन वाली तो लास्ट है, और बाकी आप लोगों की शायद होंगी। बाकी कौन सी हो रही है मैम? हमें हमारे पास सिर्फ यही है, हम मैंने यही कहा हैं। शायद होंगी, कुछ न्यू इंट्रोड्यूस होंगी शायद, ये जिस तरह से वो सीईओ आपको बताएंगे ना, अभी वो आ रहे हैं, तो वो आते हैं और वो आपको सारा ब्रीफ करते हैं। मैम जी इसके जी अलावा कोई वर्कशॉप नहीं है, जैसे कोई कंप्यूटर के रिलेटेड हो या जी जी, प्रोग्रामिंग? आज इसी हवाले से तो सर ने बात करनी है, सर हुजैफा खान ने। बस ओके वो आई बिजी वांना की गो तरह। टू ओके ओके मैम, अब मैं सर हुजैफा को इनवाइट करना चाहती श्योर। हूँ कि अब वो अपने ख्यालात का इजहार करें प्लीज। अपना माइक अनम्यूट करिएगा सर, और हमें लास्ट टाइम ये एक्सप्लेन कर दीजिए सबको, ताकि जितनी भी क्वेरीज हैं तब सबकी क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। वालेकुम सलाम। जी ओके, सर ठीक है, आप ये बताएं। वॉइस क्लियर है वालेकुम आप सबके सलाम। लिए? अच्छा, सबसे जी पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह रहा आप सबका। अगर आप माइक में अनम्यूट नहीं करना चाह रहे हैं पीछे शोर की वजह से, डिस्टरबेंस की वजह से, अव्वल तो माइक अनम्यूट करें। अगर नहीं कर पा रहे तो चैट में बता दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट से, मिस फरिया से, कि आप जो चैटिंग है वो ओपन फॉर ऑल कर दें, ताकि ना इंटरेक्शन ओके रहे। सर जी जी मैं करती हूँ।
क्योंकि माइक अगर हर एक पर्सन अपना माइक अनम्यूट करेगा तो एक डिस्टरबेंस होगी। तो जो अनम्यूट करना चाह रहा है वो अनम्यूट करके कह सकता है, जो अनम्यूट करना नहीं चाह रहा वो अपना चैट के अंदर इंटरेक्शन जो है मेरे। जी सर ऑन है। ओके। नहीं, आप इसको डायरेक्ट मैसेज ना करें, आप ना इसको एक वेट सेकंड, आप इसको एवरीवन टू एवरीवन टैग भी कर दें, ठीक है। जी 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 अब आई थिंक हो गया है। जी सर कर दिया था। ओके, सैयद इमरान शाह कह रहे हैं फर्स्ट ग्रेट ऑनलाइन एक्सपीरियंस, थैंक यू ब्रो कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस सुजिया का कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम निकाला और हमारी लर्निंग करवाई। इवन कि आज के दौर के अंदर कोई भी इस तरह आपको लर्निंग नहीं करवा रहा होता, और स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो अपना एक तो टाइम भी दे रहा है और आपको सिखा भी रहा है बहुत सारी चीज़ें। और जिन लोगों का इंटरेस्ट था, जो कुछ सीखने के लिए आए थे, आई थिंक उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है इस प्लेटफॉर्म से, इस वर्कशॉप से, क्योंकि उनके बेसिक नीड जो थी वो लर्निंग थी और उन्होंने लर्निंग की है। और आई गेस मैं डेली बेसिस पे होता हूँ मीटिंग में, असल में थोड़ा सा बिजी था क्योंकि कॉमर्स वाले इस तरह के हैं कि इन्होंने छुट्टियां नहीं की, और छुट्टियों के अंदर नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन फाइनल्स का नोटिफिकेशन आ गया है। और ये था कि कल मेरा फाइनल भी था लैब का, डीएलडी का, तो जो कि अब कैंसिल हो गया। अब इंशाल्लाह फाइनल्स थ्योरी वाले पेपर्स की बात होगा। तो मैं मीटिंग में होता ज़रूर था और सुन भी रहा होता था। सिर्फ एक दिन इस तरह की मीटिंग थी जो मैंने नहीं सुनी थी, उस दिन आई थिंक हमारी सेमेस्टर डिनर था, जिसकी वजह से वो मैं सुन नहीं पा रहा था। लेकिन हर मीटिंग में मैं सुन लाजमी रहा होता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि हमारा ये तो कोर्स हो गया एंड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि चलें, ये तो एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स था, मैम शुजा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्ट किया है। और उसके बाद मेरे जब मैं बिजी था तो मिस फरिया ने बहुत अच्छी होस्टिंग की है, और जितनी भी टीम जो मैनेज कर रही थी, लिंक्स क्रिएट कर रही थी, सब कुछ मैनेज कर रही थी, ग्रुप्स को देख रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा, पूरी टीम ने बहुत अच्छा मैनेज किया है माशाल्लाह से। तो इसके बाद क्या होगा, जाहिर है क्वेश्चन तो है आपका भी, और अभी काफी लोग पूछ भी रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन आईटी वर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है कि जो कि आपके लिए डिफरेंट सेल्फ डेवलपमेंट के, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज लेके आ रहा होता है, वर्कशॉप्स लेके आ रहा होता है, सेशंस लेके आ रहा होता है। हमारे प्रीवियस काफी इस तरह के कोर्सेज हुए हैं जिसमें फाइवर था, एमएस ऑफिस था, ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज थी, इसके अलावा यूट्यूब का था, कैनवा का था, ग्राफिक डिजाइनिंग का था। इस तरह के और भी बहुत से कोर्सेज जो हैं वो हम प्रीवियस करवा चुके हैं, ठीक है। जो कि हमने डिफरेंट क्लब्स की तरफ से भी रिप्रेजेंट किए थे। रोटर क्लब ऑफ साइबर एलीट्स की तरफ से भी हमने रिप्रेजेंट किया था, और डिफरेंट सोशल वर्कर्स सोसाइटी है, सोशल वर्किंग सोसाइटीज हैं जिनके थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया था, और कुछ जो है हमने खुद भी रिप्रेजेंट करके करवाए थे, ठीक है। उन सब की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन उनमें कुछ कोर्सेज जो जिस तरह रोटर क्लब ऑफ साइबर एलीट्स की तरफ से जो हमने ऑनलाइन अर्निंग पे वर्कशॉप करवाई थी 1 वीक की, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, ठीक है। जो हमने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कराए थे उनकी रिकॉर्डिंग आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, लेकिन जो हमने खुद रिप्रेजेंट किए थे उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये तो थे प्रीवियस कोर्सेज जो कि गुजर चुके, लेकिन हमने आगे देखना है कि नेक्स्ट क्या है। तो आई थिंक मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, नहीं, अच्छा, ओनली होस्ट कैन शेयर। अच्छा चलो, मैं आपको ना ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है। जो अब हमारे अपकमिंग कोर्सेज हैं, उसमें जो अभी हमारे अरेंज हो चुके हैं, एक किस्म, एक टाइप का ये कह लें कि अरेंज हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है, टाइम को देखना है, और ये देखना है कि जब हमारे इंस्ट्रक्टर हमें टाइम दें और उसको फिर मैनेज करके उसको हमें लेके चलना है। जो अपकमिंग हमारे एक सेशन आ रहा है वर्कशॉप, जो बहुत ही कमाल का है उर्दू अदब के हवाले से। हम इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन भी ले रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा इंग्लिश की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी जो मेन जुबान है उर्दू अदब, यकीन करें वो बहुत ही खूबसूरत जुबान है, तो हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो उर्दू अदब के हवाले से 3 डेज की जो एक वर्कशॉप है वो अरेंज की गई है। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग का एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ऐप डेवलपमेंट के ऊपर, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का हमने पहले भी कोर्सेज करवाया था,
अब ये ऐप डेवलपमेंट 2.0 होगा, ठीक है। इसके साथ इन पेज का इसलिए ऐड किया गया क्योंकि एमएस ऑफिस का हमने करवाया जिसमें एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट शामिल था, क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड ये थी स्टूडेंट्स की कि उनको प्रेजेंटेशन नहीं बना रही आनी, कि यूनिवर्सिटीज के अंदर तो चले जाते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो आईटी की डिग्री वाला नहीं है उसको ये नहीं सिखाया जाता कि आपने पावर पॉइंट यूज किस तरह करना है, आपने असाइनमेंट्स किस तरह बनानी है, आपने एक्सेल को किस तरह यूज करना है, उसके अंदर फार्मूलाज किस तरह अप्लाई करने, उसको आपने थ्रू आउट उसको लेके किस तरह चलना है, ये नहीं बताया जाता क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं होता, उनको सिखाया नहीं जाता यूनिवर्सिटी लेवल पे। लेकिन उनको बस ये कह दिया जाता है कि आपने प्रेजेंट करना है, आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने असाइनमेंट बनानी है, आपने एक्सेल के ऊपर आपने टास्क परफॉर्म करने, लेकिन ये नहीं बताया जाता। तो इस वजह से एमएस ऑफिस का हमने ऑलरेडी करवा दिया था, तो इसमें इन पे इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई राइटर जो है या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो खुद से लिखना चाह रहा हो, अरबी लिखना चाह रहा हो, फारसी में इवन के हम इन पेज में लिख सकते हैं, तो डिफरेंट क्योंकि बुक अगर आप बुक लिख रहे हैं, काफ़ी इस तरह के कंटेंट राइटर्स हैं मेरे लिस्ट के अंदर जो कि अपनी बुक राइट कर रहे हैं, कुछ राइट कर चुके हैं, तो वो क्या करें इन पेज के थ्रू अपनी खुद ही कंपोजिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन पेज का इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी 2.0 वन हमने पहले करवा दिया। अब ऑनलाइन अर्निंग का इसमें क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितने भी कम से कम एक स्टूडेंट जो है वो अपना पॉकेट मनी का जो खर्चा है वो तो निकाल सके ऑनलाइन वर्क करके। अगर वो थ्रू आउट नहीं करना चाह रहा या नहीं करना चाह रही तो कम से कम अपना पॉकेट मनी या अपने हॉस्टल की ड्यूज तो ऑनलाइन वर्क करके निकाल सके, ठीक है। और इसमें यह कि सेल्फ डेवलपमेंट भी आ जाता है, इंडिपेंडेंस आ जाता है कि इमेजिन करें कि आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, अपना अर्निंग कर रहे हो और आप होटल्स में जाते हो, आपको बिल्स खुद दें, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत इमेजिन करने की जरूरत है कि आपको किसी से लेना नहीं पड़ता, आपको घर से लेना नहीं पड़ेगा, आप जाते हो आप खुद अपने बिल्स पे करते हो। तो ये एक ऑनलाइन ऊपर अर्निंग के ऊपर भी एक हमारे इस अपकमिंग कोर्सेज में इंक्लूड है। ओके, सभी सो गए हैं, सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। ओके ओके, मैंने इसलिए चैट बॉक्स ओपन करवाया था कि आप कुछ भी। जी जी, आपको सुनने के लिए हम यहाँ पे आ जाए। ओके ओके, थैंक यू। अगर आपके कुछ भी आप बोलना चाह रहे हो तो आप इजीली अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैटिंग में बात करना चाह रहे हैं चैटिंग में कर सकते हैं। ओके, बोलना ये था कि जी जो आपने बताए हैं इनके कंप्लीट कोर्सेज आपके पास वीडियो की फॉर्म में मिल जाएंगे आपके पास? नहीं, ये अभी हमने करवाने हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये अपकमिंग है। जो करवा चुके हैं प्रीवियस उनके मैं कह रहा हूँ। जी, उनके आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, लेकिन उनमें से मैंने आपको बताया वो अवेलेबल नहीं है जिस तरह हमने रोटरी क्लब की तरफ से करवाया था, ठीक है, जो कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है क्लब्स की, तो वो नहीं है उसमें। और इसके अलावा एक दो और सोशल वर्किंग सोसाइटीज थी, उनकी वजह से करवाया था, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। जो सर आपके पास खुद के पास पड़े होंगे, कुछ तो आपके पास पड़े होंगे कोई कोर्सेज? सो सॉरी सर, आप क्या बात कर रहे थे? असल में हॉस्टल में यही होता है कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है। आप बताएं आप क्या कह रहे थे? तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने खुद परफॉर्म करवाया, यानी कि ऐसे कोर्सेज जैसे ये अभी हमारी वर्कशॉप हो रही है, ऐसे वर्कशॉप पहले आपने अटेंड की होंगी, तब आपने जो कोर्सेज जैसे आप ये हमें जो हमने वर्कशॉप की इसके में रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाती है, जी ऐसे आपके पास पड़े होंगे रिकॉर्डिंग? जी, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पड़े हुए हैं, वो अपलोडेड हैं, ये भी नहीं पड़े हुए हैं, वो अपलोडेड हैं, ठीक है। तो आप सर आई एम सो सॉरी। जी सर आई एम सो सॉरी, आज मेरी तरफ से नेट इशू बहुत ज्यादा है, वो बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस। ओके मैम, नो इशू। जी सर वही पूछ रहा था आपका,
यूट्यूब पे जो चैनल बना है उसका हमें जी नाम उसी डाल पे पढ़ें, उसी पे कंटेंट पढ़ें। अगर आप कहेंगे तो मैं प्ले लिस्ट की ना लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आप में से कोई भी लेना चाहे तो। सिर्फ एक लिंक आप वहाँ से शेयर कर दीजिए क्योंकि वो ठीक है, मैं सबसे आपके ज़्यादा साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ओके ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स है कैनवा के ऊपर। अगर आपको कैनवा का पता हो तो एक ऐसा ग्राफिक टूल है जो कि आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो, अपने मोबाइल के अंदर ऐप भी करके इसको यूज कर सकते हो। और यकीन करें मैंने खुद इससे काफी अर्निंग की है इसके ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग करके। और यकीन करें फाइवर पर या अपवर पर या guru.com पर आप इस जैसे प्लेटफॉर्म पे जाएं तो 98% लोग हैं वो इसी से अर्निंग कर रहे हैं। मैं इस पे ग्राफिक डिजाइनिंग करके, इससे बहुत सिंपल है। इसको आपको प्रो करना पड़ता है, वो आपको बाय करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक कह लें कि फ्री में आप इसको प्रो को यूज कर सकोगे क्रैक करके, ठीक है। उसके मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कैनवा प्रो यूज कर सकोगे। इवन मैं बताई भी थी पहले भी, आई थिंक मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज किया था अगर किसी को चाहिए तो, वो काफी मेंबर्स ने ली भी थी कैनवा प्रो के सेस। ठीक है, इसका है ब्लॉगर का है, यहाँ पे आप अपने फ्री के ब्लॉग्स बना सकते हो। अगर किसी को लिखने का शौक है, कंटेंट राइटर बनना चाहता है तो ब्लॉगर उसके लिए बेस्ट है। वह वहाँ पे अपने कंटेंट डाले। अगर कोई नज़में लिखता है, कंटेंट लिखता है, अगर स्टोरीज लिखता है तो ब्लॉगर उसके लिए बेस्ट है। ब्लॉगर एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट दे रहा होता है, ठीक है। इसकी जो डोमेन होती है वो ब्लॉगर की ही रहती है, लेकिन आप अपनी उसमें फ्री की वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, उसमें अपना कंटेंट डाल सकते हो, उसमें ब्लॉग्स बनते हैं और लोग ब्लॉग्स आपके देखते हैं, पढ़ते हैं, इससे जिससे आपकी ट्रैफिक आती है और आपको ब्लॉगर से भी अर्निंग होती है, ठीक है। ये इससे आपको दो फायदे हो जाएंगे, एक आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद हमारा कैलीग्राफी के ऊपर है जो अपकमिंग है इंशाल्लाह। तो कैलीग्राफी पे भी होगा, यूट्यूब पर भी होगा। यूट्यूब पे हमने एक पहले सेक्शन करवा चुके हैं, वो एक सेक्शन था लेकिन प्रॉपर कोर्स होगा। हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर सेशन है। और यकीन करें कि एक हैं डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशन हैं, तो उनका भी इंशाल्लाह सेशन अरेंज करवाएंगे न्यूट्रिशन के ऊपर। तो उसमें ये हेल्थ अवेयरनेस वाला भी आ जाएगा, या मे भी अलग अलग करवाएं, न्यूट्रिशन का भी और हेल्थ अवेयरनेस का भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी अरेंज होगा। और उसके बाद है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, उनको मैंने रिकमेंड भी किए थे कुछ एक्सपर्ट। मैं इसमें क्रिप्टो करेंसी में एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मैंने किया नहीं। मैं उस चीज़ को कभी भी इंस्ट्रक्ट नहीं करूंगा जो मुझे खुद इतनी आती हो कि मैं उसकी तैयारी किए बगैर उसको एक्सप्लेन कर सकूं। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ बैठा हूँ या बात कर रहा हूँ, मैंने कोई तैयारी वगैरह नहीं की थी, कुछ नहीं किया, मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इंस्ट्रक्ट में मैं वही चीज़ करूंगा जिसको मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है अमेजोन का। तो अमेजोन का भी इंशाल्लाह, अमेजोन का नाम काफ़ी लोगों ने सुन लिया होगा अब तक और पता भी लग गया होगा, तो इंशाल्लाह उसका भी कोर्स आ रहा है। तो ये कोर्सेज जो मैंने अभी डिटेल से बताई ये आपके साथ ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगी। इसका जो फ्लायर है और इसका जो है आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। और ये इस तरह के कोर्सेज हैं जो कि आपकी स्किल डेवलपमेंट करती है। इसमें से कुछ जो कोर्सेज हैं आईटी से रिलेटेड मोस्टली वो मैं खुद इंस्ट्रक्ट करूंगा, और जो बाकी हैं उसके लिए हम इंस्ट्रक्टर्स हायर करेंगे इंशाल्लाह जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और इसके साथ इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्लान ये भी है कि हम एक ऑनलाइन कंपटीशन भी करवाएं जिसमें अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंपटीशन होंगे वो ऑनलाइन ही। तो वो इंशाल्लाह वो अभी कंफर्म नहीं है लेकिन इंशाल्लाह प्लान है, ठीक है। तो ये थे हमारे अपकमिंग कोर्सेज। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई बात पूछनी हो? सर छुट्टियों का कोई चांस नहीं है अब कॉन्सर्ट में, या सेमेस्टर के बाद ही होंगी? अच्छा, कॉन्सर्ट की छुट्टियां देखें अब फाइनल पेपर्स हो रहे हैं, आई थिंक 3 से स्टार्ट है, ठीक है। तो पेपर्स के बाद ही होंगी, लेकिन ये है कि कह रहे हैं कि 1 मंथ की हो। लेकिन कुछ न्यूज़ ये भी थी कि इस्लामाबाद कैंपस, क्योंकि कॉन्सर साइकिल भी फेडरल के अंदर आ रहा है, इस्लामाबाद बोर्ड में आ रहा है, तो अगर फेडरल में ये है कि 4 से 5 छुट्टियां होती हैं तो यहाँ पर भी हों, लेकिन फाइनल्स हो रहे हैं तो आई थिंक छुट्टियां नहीं होंगी, फाइनल्स के बाद ही होंगी। सर क्वेश्चन है सर बताएं। जी मिस इकरा, अमेज़न ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है।
सर ये अच्छा अच्छा ये सॉरी मैं चैटिंग देख नहीं रहा था, अब मैं देख रहा हूँ। मिस शुदिया ब्यूटी टिप्स की जो वर्कशॉप है ना वो अभी नहीं अरेंज करवाएंगे, न्यूट्रिशन की होंगी। सरफराज आपके डिस्टरबेंस आ रही है माइक की, अगर तो आपने कुछ बोलना है तो आप काइंडली बोलें, नहीं तो माइक अनम्यूट कर लें। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी सर नेक्स्ट जो हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होनी है वो कौन सी होगी? अब नेक्स्ट अच्छा अच्छा नेक्स्ट कब होगी और कितने दिनों बाद होगी ये भी बता दें सर। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट जो अभी मैंने आपको अपकमिंग कोर्सेज बताए ना, इनमें से कोई भी हो सकती है, क्योंकि ना असल में अभी ना जो अभी ये वीक चल रहा है, इस वीक में हमारी उर्दू अदब की स्टार्ट हो जानी थी जो 3 डे वर्कशॉप था, लेकिन जो हमारी इंस्ट्रक्टर थी उनके भी फाइनल्स आ गए, उनका आज तीसरा पेपर था। आज उनके पेपर्स का बेटा है, उनके पेपर जैसे ही एंड हुआ आई थिंक उर्दू अदब का करवाएंगे, और उसके बाद उसके साथ साथ यूट्यूब का, और जो है कहाँ गया, हाँ उसके बाद ऐप डेवलपमेंट का। आई थिंक ये अभी हैं, और उसके बाद कंटेंट फरवरी में जनवरी में नहीं फरवरी में कंटेंट राइटिंग का, और उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू होंगे इंशाल्लाह। सर प्री प्री प्लानिंग है सबकी कोर्सेज की या फिर अभी करनी है प्लानिंग आपने? हैं नहीं, ये हमारी प्लानिंग कंप्लीट है। में से जो हमने कोर्सेज करवाने हैं उनके हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात भी हो गई है। जो मैंने खुद इंस्ट्रक्ट करने उनकी तो बात अलग है, जो जो हमने दूसरों से इंस्ट्रक्ट करवाने हैं, ठीक है, उनकी हमारी बात डन है इंस्ट्रक्टर से ये कह लें। लेकिन बात ये है कि मैंने अपना टाइम भी देखना है, ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स का टाइम भी देखना है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स चल रहे हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ की ये है कि मिड्स भी हैं, किसी के फाइनल्स हैं, तो हमें ये स्टूडेंट्स का ही देखना है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स ही होते हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपना भी देखना है कि फाइनल्स से थोड़ा निकाल के। जी सर। ओके तो अच्छा अच्छा यहाँ तक आपको अब पता लग गया अपकमिंग कोर्सेज का। अभी ना कुछ देर तक विद इन मीटिंग एंड होने के विद इन 5 to 10 मिनट्स के बाद आपके साथ ग्रुप में एक लिंक शेयर होगा। उस लिंक पे क्या है कि हम आपसे सजेशन मांग रहे हैं कि नेक्स्ट कोर्स कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो आपने उसको लाजमी फिल करना है, आपने सजेशन देनी है कि आप नेक्स्ट कोर्स कौन सा करना चाह रहे हो, कोर्स या सेशन या वर्कशॉप, ठीक है। उसमें आपने अपनी सजेशन देनी है, उस लिंक पे क्लिक करना है और अपना नेम और अपनी सजेशन जो है वो लाजमी सबमिट करवानी है, ठीक है। इससे ये होगा फिर जो जिसकी सजेशंस हमारे पास ज़्यादा होंगी जिस कोर्स की, तो हम उसे प्रेफर पहले करेंगे, ठीक है, कि पहले उसको करवा दें, फिर जो फर्स्ट में रखा हुआ उसको थोड़ा सा लेट कर दें, ठीक है। जी जी सही है सर। ओके और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके अब आए थे आपने सर्टिफिकेट्स सब पे। कुछ ओके आपने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, हमें मजीद कुछ भी नहीं पूछना आपसे। ओके ओके थैंक यू। अच्छा तो सर्टिफिकेट्स पे आ जाते हैं कि सर्टिफिकेट जिस तरह अभी हमने पहले कहा था, जो मीटिंग में आ रहे हैं, जाहिर है जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं, पार्टिसिपेट किया है, मीटिंग के अंदर आए हैं, उन्हीं को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सर्टिफिकेट आपके ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक आपको जो है आज या कल आपको मिल जाएंगे। और साथ में एक बात ये करनी थी कि अगर कोई हार्ड फॉर्म में लेना चाह रहा है सर्टिफिकेट, मीन्स कि वो कह रहे हैं मुझे हार्ड फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हार्ड फॉर्म में अब ये होता है ना आपका वो गुम नहीं होता, या आप अपनी सीवीज के अंदर यूज कर सकते हो। तो सॉफ्ट फॉर्म का ये होता है कि आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है, ये चीजें वगैरह।
अगर कोई हार्ड फॉर्म में लेना चाह रहा है, और हार्ड फॉर्म में कौन लेना चाह रहा है, जो कॉम्प्लेक्स से हैं या साहिवाल से हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरे सिटी से आके लेना चाह रहा है तो वो भी आके ले सकता है। तो वो जो भी लेना चाह रहा है तो वो काइंडली मुझे ना इनबॉक्स में ना बता दे, ठीक है, अभी बता दे, मीन्स कि आज में कि जो जो हार्ड फॉर्म में लेना चाह रहा है। प्रेफर मैं उनको करूंगा जो साहिवाल से हैं या कॉम्प्लेट से हैं। जी क्लियर है? क्लियर है सर, कोई इशू नहीं है। ओके, तो एक आपने लिंक पे लाजमी सजेशन देनी है, लेकिन अभी हम मीटिंग में ही हैं, अभी 5 मिनट पड़े हैं हमारी मीटिंग में। तो अभी मैं अगर आपको कहूँ कि आप सजेशन दें, आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इस टाइम मीटिंग में, जो इस टाइम मीटिंग में नहीं है वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूंगा जो इस टाइम मेरी मीटिंग में है। तो काइंडली आप लोग मुझे बताएं कि आप किस कोर्स को ज़्यादा प्रेफर करें, कि आपको क्या लगता है कौन सा कोर्स पहले करवाना चाहिए। सर अगर Amazon ड्रॉप शिपिंग का कोर्स हो जाए तो? अमेजोन का मैंने आपको कहा मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं खुद अमेजोन का सीख रहा हूँ, इसलिए मैं उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपके लिए एक अच्छा इंस्ट्रक्टर लेकर आऊंगा जो कि अमेजोन पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हो, उसका अपना अकाउंट हो और उस पर वो अर्निंग कर रहा हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अमेजोन का भी करवाएंगे। अच्छा, अमेजोन एक में सिकरा ने भी कहा है अमेजोन, और किस किसने अमेजोन का कहा है? सर ये अमेजोन ही सही है। सर Amazon ही ठीक है क्योंकि अगर जो CS वाले उन्होंने तो आगे प्रोग्रामिंग पढ़ ही लेनी। ओके, नहीं प्रोग्रामिंग का नहीं अभी हम करवा रहे, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक एक स्पेसिफिक चीज है, एक कह लें कि बहुत ही कम लोगों ने, अब जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं हर कोई डिफरेंट डिग्री से है। अब जो केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाला उसको हमारी C++ से, जावा से, पाइथन से क्या लेना देना, वो तो वैसे ही देखेगा तो वो कहेगा ये क्या बला है, ये कौन सी जबान है, तो उसका उससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए पहले हमने एक इंटरव्यू करवाया था C++ का, तकरीबन 4-5 मंथ पहले की बात है, तो उसे इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं की थी, क्योंकि उसमें ये थोड़ी सी स्पेसिफिक सी चीज़ है आ जाती। तो प्रोग्रामिंग का तो नहीं अभी इरादा करवाने का, बाकी ये इंशाल्लाह ताला अमेजोन का आपने बताया तो अमेजोन का जरूर करवाएंगे। अच्छा, मिस आयशा पूछ रही है कि साहिवाल से किस तरह रिसीव कर सकते हैं। साहिवाल से इस तरह रिसीव कर सकते हैं कि आप मीन्स के, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? ओके, जिन्होंने मुझे अभी मैसेज किया ना चैट में, ठीक है, वो मुझे ना इनबॉक्स में मैसेज करे व्हाट्सएप पे अपने रियल नेम के साथ, तो उनको हार्ड फॉर्म में इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स के हैं या साहिवाल के हैं। अच्छा, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ओके, आपको ना मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आई थिंक मेरी क्लिक्स हैं कुछ। ओके चले ना, आप मुझे मैसेज मैसेज कर दें इनबॉक्स में रियल नेम, तो आई विल ट्राई कि आपको भी सर्टिफिकेट हार्ड में ही मिले। अच्छा, उर्दू अदब, जी इंशाअल्लाह मिर्ज़ा फैसल के हम उर्दू अदब का भी करवाएंगे। उर्दू उर्दू अदब का तो ये कह लें कि अरेंज था, सब कुछ अरेंज था, सिर्फ ये कि उनके पेपर्स आ गए हमारे इंस्ट्रक्टर के, और इंस्ट्रक्टर भी इंशाअल्लाह 2-3 थे, लेकिन 2 करवाए, क्योंकि एक जो थे वो उनके HOD थे डिपार्टमेंट के, उर्दू डिपार्टमेंट के, GC यूनिवर्सिटी के। तो मैंने कहा कि अभी इतना बड़ा नहीं हम रिस्क ले रहे कि HOD उर्दू अदब के GC
यूनिवर्सिटी के, तो उनको बुलाएं और सेशन दिलवाएं। उन्होंने कहा था कि वो भी रेडी थे देने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे प्रपोजल बना के दें आप, तो मैं करवाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह आपका फिर अलग से अरेंज करवाएंगे। तो फिलहाल थोड़ा छोटा लेवल पे रहते हैं, तो उर्दू इंशाल्लाह अदब ऊपर कौन बढ़ेंगे। कौन कर रहे हैं? क्या? उर्दू अदब इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? वो हमारी 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं, और इवन वो इस तरह था ना, वो 3 दिन का रखना था। तो 3 दिन में ये था कि 3 डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स जो इंस्ट्रक्ट करें। तो अब 2 हो गई हैं, क्योंकि वो जो 3rd पर्सन थे वो थे HOD उर्दू अदब के GC यूनिवर्सिटी के, तो उनको मैंने रोका है इंस्ट्रक्टर को। आप उर्दू अदब में बच्चों को क्या फैसिलिटेट करेंगे, क्या चीज प्रोवाइड करेंगे उन्हें? क्या प्रोवाइड करेंगे जी, या फिर ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ये आप इंस्ट्रक्टर से अगर सवाल पूछते हैं ना इसका, तो वो बेटर आपको जवाब दे सकेगी। जिस चीज़ का मैं इंस्ट्रक्टर हूँ मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि अब वो उस कोर्स के अंदर या उस वर्कशॉप के अंदर क्या क्या आउटलाइंस रखती हैं या क्या क्या इंक्लूड करती हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। जी ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, तो किसी और का कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन या कुछ भी जो आप शेयर करना चाह रहे हो? कन्फ्यूजन तो कुछ नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि आई रियली अप्रिशिएट मैम शुजिया, उन्होंने टाइम निकाला और इस साइंस इंस्ट्रक्ट किया बच्चों को। बाकी आपकी एफर्ट्स भी माशाल्लाह बहुत, आपने अच्छा काम किया, साथ में पूरा वर्क करते रहे बच्चों के लिए, इतना कोई भी नहीं करता फ्री ऑफ कॉस्ट। So I really appreciate your team and Ma'am Shuri also. Thank you, sir. Yes, sir. I also appreciate. Thank you, sir. Thank you so much. Jazakallah. आप सबकी लर्निंग होगी, आप सबको बेनिफिट मिला, यही बहुत काफी है। We all wish you a happy future and for Ma'am Shujia and you also. Thank May you. Allah Almighty bless you. वैसे मैं मैम शुजिया को आपके मैसेज पहुंचा दूंगा, वो अभी मीटिंग सेलेक्ट कर गई क्योंकि उनका नेक्स्ट सेशन था। उन्होंने मैसेज किया था कि उनका असल में 2 भी उनका एक जगह पे और पोस्ट चल रहा है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है। तो मैं आपके मैसेज उनके तक पहुंचा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ओके। मैसेज तो नहीं, जरूरी तो नहीं, लेकिन बस हमारी दुआएं हैं आप सबके हाँ, लिए। बस ये चीज के दुआओं में याद रखें बस। जी सर, जरूर। ओके, थैंक यू। ओके, तो ओवर टू यू मिस फरिया, होस्ट। आप अब मीटिंग को एंड कर दें। आई थिंक अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सुन के कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ओवरऑल, एंड हर एक का फीडबैक बहुत अच्छा था। एंड एट लास्ट आई आल्सो वांट टू थैंक यू सो मच सर हुज़ैफा खान CEO एंड मैम शुजिया हसन। सो अल्लाह हाफिज जी। मैं ये कह रहा था कि काइंडली CEO ना क्या करें। मैं पहले भी एक बात कहता हूँ कि जितनी भी मेरी टीम है, जो कैबिनेट है, आप खुद सुपरवाइजर हैं तो आप भी CEO हैं। फैसल अगर टीम है तो फैसल भी CEO है। हीरा है, मैम हीरा है तो वो भी CEO है। अगर मैम सादी है, मैम अक्सर है, वो भी CEO। तो जितनी भी टीम कैबिनेट जो वर्क कर रही है वो आप सब CEO, क्योंकि मैं CEO नहीं हूँ, ठीक है। तो काइंडली मुझे CEO ना क्या करें। बस हुज़ैफा सर हुज़ैफा ही कह लिया करें, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप सब CEO। ओके सर, इट्स ओके, थैंक यू फॉर योर ऑनर एंड अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। सब अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सर्दी से बचे रहिएगा, ये ना हो कि किसी को बुखार हुआ पड़ा हो। सो अच्छा लगा आप लोगों का फीडबैक लेके। एंड सॉरी मैम, मैं जब आपकी नेक्स्ट बात काट कोर्स, रहा हूँ। सॉरी, मैं जी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक और बात याद आ गई। अच्छा ना, आपके साथ ग्रुप के अंदर एक और लिंक शेयर करूंगा ग्रुप का अपडेट्स का, ठीक है। जो हमारे ऑनलाइन IT वर्क्स की अपडेट्स का वाला ग्रुप है, ठीक है। तो उस ग्रुप में क्या होगा कि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे अपकमिंग कोर्सेज की, हमारे जितने भी सेक्शंस की, जितने भी वर्कशॉप्स की, और एज वेल एज आपकी जॉब्स की। मेरी कोशिश होती है हर टाइप की जॉब्स की, जितने भी लेटेस्ट जॉब्स आ रही हैं मार्केट के अंदर, उसके आपके साथ शेयर करूं ताकि आप उसको अवेल कर सको।
तो वो अपने ऑनलाइन IT अपडेट्स के नाम से आई थिंक ग्रुप होगा, ग्रुप 4 है, ठीक है। तो उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप उस इनवाइट लिंक के जरूर उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप अपडेट रहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो फिलहाल के लिए स्पोकन इंग्लिश वाले ग्रुप है, ये आफ्टर 3 to 4 डेज रिमूव कर दिए जाएंगे, क्योंकि जब आपको सर्टिफिकेट्स मिल के ये सब कुछ हो गया, तो जो परमानेंट ग्रुप होगा वो आई थिंक अपडेट्स वाला होगा। अपडेट्स के लिए आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके मैम, यू मे कंटिन्यू। ओके, तो मैं सब यही कहना चाह रही थी कि आप सब लोग अगर ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं ग्रुप में, भी ये कहने वाली थी कि अगला जो हमारा कोर्स होगा नेक्स्ट इंशाल्लाह अपकमिंग, आप सब लोग उसे ज्वाइन करिएगा। और जिस तरह से अभी आपको फायदा हुआ, उम्मीद है कि आपको उससे भी ज्यादा फायदा होगा अगर आप वो ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अगर तो आप रेगुलरली क्लासेस लेते हो, लेक्चर्स लेते हो जूम पे अटेंड, मतलब बी अटेंटिव रह के, तो फिर तो आपको फायदा होता है हर कोर्स का, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे फिजिकल आप कहीं पे कर रहे हो। तो थोड़ा सा इस मामले में यही कहना चाहूंगी कि अटेंटिव रहा करें, और कोई क्वेश्चन हो आई थिंक मैम का इंटरनेट इशू आ गया है। तो मैम आपको आवाज आ रही? ओके चलें। हाँ। जी जी सर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज टू अल्लाह हाफिज टू ऑल, टेक केयर। Okay. Okay, I'm gonna ending this meeting. Allah Hafiz.